So today we will discuss about some characters of Xanthophysi, Phaeophysi and Rhodophysi. So first we will discuss Xanthophysi. Xanthophysi is also known as yellow-green algae. Now the some characters of Xanthophysi which is most important for your examination point of view. So first is the Xanthophysi mostly present in fresh water and few species are present in terrestrial area. सेकेंड इज प्लास्टिड कंटेन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ई. ज़ैंथोफाइसी एल्गी में क्या होता है कि जो प्लास्टिड्स होते हैं वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ई कंटेन करते हैं. पायरिनोइड्स जो होता है वो ज़ैंथोफाइसी एल्गी में एब्सेंट होता है. एंड रिजर्व फूड मटेरियल इज ऑयल दैट इज द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ ज़ैंथोफाइसी एल्गी. Next one is cell wall is made up of pectin substances. So in case of Xanthophysi algae, cell wall that is made up of pectin substances. Next one is motile cells bear two unequal flagella. जो Xanthophysi algae होती है उसमें दो तरह के अनइक्वल फ्लैजेला होते हैं. फर्स्ट इज विप्लेस टाइप फ्लैजेला होता है एंड सेकेंड वन इज टिंसल टाइप. विप्लेस टाइप इज ऑल्सो नोन एज एक्रोनिमेटिक एंड टेंसिल टाइप को बोलते हैं पेंटानिमेटिक. सेल्स इन केस ऑफ Xanthophysi algae आर यूकैरियोटिक और प्लांट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं. द मोस्ट important example of Xanthophysi algae is Vaucheria. Fine. So this is the structure of Vaucheria where filament is present, vacuole is also present, and on the base it is heptaron is present. Next one is reproduction. So in case of Xanthophysi algae there is sexual and asexual reproductions are present. फर्स्ट इज आइसोगैमस टाइप. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो आइसोगैमस टाइप होती है जिसमें फ्यूजन होगी सिमिलर गैमेट्स की. बट इन केस ऑफ वॉचीरिया देयर इज oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस वेयर फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमेट्स आर प्रेजेंट. ठीक है, तो oogamous में क्या होता है कि जो डिसिमिलर गैमेट्स होते हैं उनकी फ्यूजन होती है जो कि साइज स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं और इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है दैट इज एंथ्रीडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो गोनिया. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, एप्लानोस्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. सो इन केस ऑफ एप्लानोस्पोर जो होता है दैट इज formed on the tip of the lateral branches and the unique character of Xanthophysi algae is presence of Gongrocerastase. So what is Gongrocerastase? कि जब न्यू प्लांट फॉर्मेशन होती है देयर इज थिन अमीबॉइड सेल्स आर डेवलप्ड. जब न्यू प्लांट फॉर्मेशन होगी तो उसमें एक थिन अमीबॉइड सेल्स फॉर्म्ड होते हैं जिसको सिस्ट बोलते हैं और इस स्टेज को बोलते हैं Gongrocerastase. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ Xanthophysi algae. Now next one is Phaeophysi algae. Phaeophysi algae is also known as brown algae. Fine. So some characters of Phaeophysi algae are that is the pigment of brown algae are chlorophyll A and chlorophyll C. Chlorophyll A और chlorophyll C जो है ये पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ Phaeophysi algae. और Xanthophysi algae में हमने पढ़ा था कि जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल ई. तो डिफरेंस क्या हो गया कि जो Phaeophysi algae है उसमें पिगमेंट प्रेजेंट होंगे क्लोरोफिल ए एंड सी और Xanthophysi algae में होंगे क्लोरोफिल ए एंड ई. फाइन. एंड फ्यूकोजेंथिन होगा. Xanthophysi में xanthophyll था और Phaeophysi में क्या है फ्यूकोजेंथिन. फाइन. रिजर्व फूड मटेरियल इन केस ऑफ Phaeophysi algae इज लैमिनेरियम और मैनीटोल, which I already told you in my previous video that the reserve food material in case of Phaeophysi algae is laminarian or mannitol. Next character is alginic acid is a constituent of phycocolloid in cell wall of brown algae. Fine. So reproduction is again asexual and sexual reproduction. The difference is that in case of asexual reproduction there is presence of sporangia. Sporangia are of two types. First is unilocular sporangia and second is plurilocular sporangia. In case of unilocular sporangia, unilocular means uni means single.
तो वन सेल्ड ग्लोबुलर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया एंड मल्टीसेलुलर इलिप्सॉइडल स्ट्रक्चर फाउंड इन ब्राउन एल्गी एज इन केस ऑफ एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस जो है वो फियोफाइसी एल्गी का एग्जाम्पल है। तो एक्टोकार्पस एल्गी में क्या होता है, मल्टी सेलुलर इलिप्सॉइडल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया। और जो स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक डेवलपमेंट होती है, इसमें जो स्पोरोफिटिक फॉर्मेशन होती है वो डिप्लॉयड होगी और गैमेटोफिटिक जो होगी दैट इज हैप्लॉयड। तो ये जो फॉर्म्स हैं स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक जो हैं ये वेजिटेटिव फॉर्म्स होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं इन द रिप्रोडक्शन ऑफ एक्टोकार्पस। फाइन। एंड अगेन इसमें जो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है वो बी प्लैश टाइप एंड टेंसल शेप का फ्लैजिला होगा। और कुछ अब इसके फियोफाइसी एल्गी के एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट है एक्टोकार्पस, सेकेंड इज लैमिनेरिया, थर्ड वन इज मैक्रोसिस्टिस, फोर्थ इज फ्यूकस एंड फिफ्थ इज आर्गोसम। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फियोफाइसी एल्गी। एक्टोकार्पस इज स्मॉल फिलामेंटस प्लांट। एक्टोकार्पस जो होता है ये एक स्मॉल फिलामेंटस प्लांट होता है। लैमिनेरिया और माइक्रोसिस्टिस जो होते हैं इनको जॉइंट कैल्प्स बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आ सकता है जॉइंट कैल्प्स आर नोन एज दैट इज लैमिनेरिया और मैक्रोसिस्टिस। लैमिनेरिया और मैक्रोसिस्टिस को बोलते हैं जॉइंट कैल्प्स। फ्यूकस जो है इट्स एग्जाम्पल ऑफ फियोफाइसी एल्गी। फ्यूकस को बोलते हैं रॉक वीड्स। फ्यूकस इज ऑल्सो नोन एज रॉक वीड्स। सो याद रख लेना कि फ्यूकस क्या होता है, दैट इज रॉक वीड्स एंड सार्गोसम इज नोन एज गोल्फ वीड। फाइन। So these are some important characters of Phaeophysi algae which is most important for your TCT medical or TET exam or another bio-related exam. So you should know all the characters of Phaeophysi algae. Even you should know all the characters of all the types of algae. So learn all the things. Fine. And the last one is Rhodophysi algae. Rhodophysi algae is also known as red algae. General characters of Rhodophysi algae are the reservoir material of Rhodophysi algae is Floridian starch or galactosides. Fine. Now the photosynthetic pigments are present in case of Rhodophysi algae are R-phycocyanin and R-phycoerythrin. In case of Polysiphonia, plant body is heterotrichous filament. Polysiphonia के केस में जो plant body that is made up of heterotrichous filament, and here heterotrichous filaments are consist of two system, that is prostate system and erect system. Prostate system जो है वो present होगा on the basal filament में and erect system on the vertical और aerial filaments में. Next one is reproduction. So reproduction is again asexual and sexual reproduction. Asexual reproduction spores are non-motile, and in case of sexual reproduction is oogamous type. Here the male gamete are non-motile and called spermatia, and female sex organs are carpogonia. And gametophytes जो है the thallus of Polysiphonia is dioecious. Dioecious means male and female gametophytes are separate. Fine. And the examples of Rhodophysi algae are Batrachospermum and Polysiphonia. Now the some important economic importance of Rhodophysi algae, which is very most important for your examination point of view. First is red algae, like Geladium is source of agar jelly. रेड एल्गी जो है जैसे जो जेलेडियम है वो अगार जेली का सोर्स होता है. सेकेंड इज अगार इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्लेसेरिया एंड कैम्पेलियोफोरा. जो अगार है वो ग्लेसेरिया से एक्सट्रैक्ट होता है एंड कैम्पेलियोफोरा से एक्सट्रैक्ट होता है. अगार जो है दैट इज यूज्ड इन फूड, फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक्स, लेदर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. रेड एल्गी जो है वो यूज्ड होती है चॉकलेट मिल्क प्रेपरेशन में. एंड एक और है कॉन्ड्रस जिसको आयरिस मोस बोलते हैं, ये फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन में हेल्प करता है. एंड लास्ट वन इज रोडेमेनिया पाल्मेटा, ये जिसको डल्स भी बोलते हैं और ये मेडिसिन प्रेपरेशन में यूज होती है.
So these are most important characters of rhodophysi algae. So hope students you like all the content of all the algae. So these all are the important for your examination point of view. So make sure that you have to learn all the things which is very important for your TCT medical TET exam and another botany related exams. So you should know about all the characters of all the algae. So मैंने इन वीडियोस में आपको एल्गी की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, वो सारा मैंने मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा दिया है मेरी सारी वीडियोस में, आप देख लेना। तो ये आपको और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने सारा कुछ इन वीडियोस में ही इंक्लूड कर दिया है। सो आप ये देख ले और इनको अच्छे से लर्न कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।